বর্তমানে জনজাতিদের ভাষা সংস্কৃতি সংকটে ভবিষ্যতে জনজাতিরা রাজ্যে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। তাই জনজাতিদের রক্ষার্থে তিনি গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবি তুলেছেন। একই সাথে জনজাতিদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিপ্রামথা সুপ্রিমো তথা রাজ্যে এডিসির ভাবি সিইএম প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। রাজ্যের এডিসি নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ফলাফল ঘোষণার মাধ্যমে তিপ্রামথা আইনপিটি জোট এডিসির শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে নির্বাচনোত্তরকালেও গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে অনড় তিপ্রামথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। রাজ্যের জনজাতিরা ৭০ বছর যাবৎ সমস্যায় ভুগছে। বর্তমান সময়ে জনজাতিদের ভাষা সংস্কৃতি সংকটাপন্ন। এমনকি অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যে জনজাতিদের অস্তিত্ব মুছে যাবে বলে এনডিটিভির নর্থ ইস্ট ব্যুরো চিফ রত্নদীপ চৌধুরীকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন তিপ্রামথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। The indigenous people of Tripura have suffered for 70 years. And then when you pass Citizenship Amendment Act, we went through the entire turmoil all over again. Today in our land where we were once in control, we are now only 30%. And जब सेंसस होगा 2025-26 में, तब we will be down to 20%. You have finished the original people of the land, and what have you given us in return? Nothing. आज हम लोग का लैंग्वेज खतरे में है, आज हमारी कल्चर खतरे में है। तो आप जब हम ये इसके बारे में बात करते हैं तो हमको क्या ऑफर में मिलता है? हम आपको PWD मिनिस्टर बना देंगे। This is not what we want. We want Greater Tipraland. अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, and he is the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे उन्होंने ब्लू प्रॉब्लम सॉल्व किया, आई एम रिक्वेस्टिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि आप तो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे आप जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कीजिए। हम तैयार हैं, लेकिन हम इसका सेटलमेंट परमानेंट कल्चरल आइडेंटिटी सेटलमेंट। মুখে বললেও রাজ্যে সিপিআইএম সিএ এর বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন করেনি, এমনকি কংগ্রেসও না, এবং কংগ্রেসের তা না করাটা যে ভুল ছিল তিনি তা প্রমাণ করেছেন বলে জানালেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। सीए का अपोज कर रहा था, एंड मुझे मेरे जनरल सेक्रेटरी ने कहा और मीडिया में भी कहा कि यू कैन नॉट गो अग्रेसिवली ऑन सीए इन त्रिपुरा बिकॉज वोट में इफेक्ट होगा। मेरा कहना है कि अगर आप असम में यू कैन प्रोटेस्ट, दिल्ली में यू प्रोटेस्ट, वेस्ट बंगाल इन मध्य प्रदेश, इन महाराष्ट्र यू प्रोटेस्टिंग, इन मेघालय यू प्रोटेस्टिंग, और मेरे स्टेट में जहां में मेरे लोग अफेक्ट हो रहे हैं सीए के लिए, आप बोलते मत करो क्योंकि यहाँ में वोट बैंक अफेक्ट होगा। तो अगर आपको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी तो मुझे क्यों बनाया प्रेसिडेंट? मैं अपने लोगों को झूठ नहीं बोल सकता हूँ। और आप देखेंगे जब व्हेन आई रिजाइन, आई एम द ओनली पर्सन हु हैज लेड द सीए मूवमेंट इन त्रिपुरा। द सीपीएम पार्टी जो पूरा बोलती है कि वो वी अगेंस्ट सीए, द नेशनल मीडिया शुड नो इन त्रिपुरा मानिक सरकार एंड कंपनी डिड नॉट डू वन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सीए। The Congress party after I left did not do one protest against CA. It was people like us who fought against CA. And our understanding of CA, we are not against any religion, we are not against any community. We want that we have already suffered इतना 70 साल से हम सफर करते हैं। आज हमारा पॉपुलेशन 30% हो गया है। आप और अगर बाहर के लोगों को लाएंगे तो हमें बहुत खराब से इफेक्ट होगा। अगर आपको रखना भी है तो आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन नहीं, they did not listen, and then I had to leave the party, and I had told when I left the party that I will prove it that you are making a mistake. You are making a mistake by letting me go. I'm talking for my people. I'm sincere. Those people are not sincere. They are only looking at vote bank. You will suffer. তিনি মন্ত্রী হতে চান না, তিনি এমপি হতে চান না তা জানিয়ে তিনি সমাধান চান, এমন মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিপ্রামথা সুপ্রিমো। धर्म के आधार में एनआरसी नहीं होगा, आप लाइए। और कांग्रेस को भी बोलने दीजिए कि 2 साल पहले जो प्रद्योत बोल रहा था ठीक था, उसके संग अन्याय हुआ। और उसके बाद भी ये मेरे बारे नहीं है, ये बात है कि मैं अपने लोगों को जाके क्या बोलूं। हमको सोल्यूशन चाहिए, कोई समझ क्यों नहीं रहा है। मुझे एमपी नहीं बनना है, मुझे मंत्री नहीं बनना है, हमको सोल्यूशन चाहिए हमारे लोगों का। अगर सेंसस
2025 में हुआ, उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद हम लोग खत्म हो जाएंगे। द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा विल बी फिनिश्ड। एक कम्युनिटी जो 1000 साल से है, आज वो इरेलीवेंट हो जाएगा। इसके लिए हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मांग रहे हैं। अगर आप हमको बचा सकते हैं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बचा सकते हैं, तो आप हमको एक सोल्यूशन दीजिए। जैसे आपने ब्रू का प्रॉब्लम को सॉल्व किया, होम मिनिस्टर ने ब्रू का प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लोकली अगरतला में नहीं सॉल्व हुआ, ये होम मिनिस्टर ने सॉल्व किया। तो आप वैसे ही हमारा ये प्रॉब्लम। এডিসির অর্থ কোথায় কিভাবে খরচ হয় সেসব শ্বেতপত্র প্রকাশের মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরবেন। এমনকি তিপ্রামথার রাজনৈতিক দল নয়, তা এক আন্দোলন বলেও জানালেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। अनटचेबल रह जाएंगे। मेरे लिए सब टचेबल है। मैं नफरत की राजनीति नहीं करता। जो बीजेपी में है वो भी मेरे कम्युनिटी से है, जो कांग्रेस में है वो भी मेरे कम्युनिटी से है। ये कोई सिविल वॉर नहीं चल रहा है। ये जो सिविल वॉर चल रहा है सब दिखावट है। शाम में सब बैठकर एक संग चाय पीते हैं और भी कुछ होता है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैं डेवलपमेंट की राजनीति करना चाहता हूँ। आपने मेरा पूरा इलेक्शन देखा, यू सॉ माय होल इलेक्शन। आई डिड नॉट अटैक राहुल गांधी, I did not attack our Prime Minister. I did not attack Manik Sarkar. I said this is what we will do. I led a positive campaign. We led a positive. हमने पॉजिटिव राजनीति की। मैंने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। मैंने कहा हम ये करेंगे। और जो एडीसी काउंसिल में हम पावर में आए हैं, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, व्हाट वी विल डू इज वी विल गिव अ ट्रांसपेरेंट, करप्ट फ्री, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जहां में कितना पैसा कहां से आता है, कितना पैसा कहाँ में खर्च होता है, कितने सैलरी में जाता है, कितने रास्ते में जाता है, कितने डिपार्टमेंट में जाता है, इसको हम व्हाइट पेपर करके ऑडिट करके वेबसाइट पे डालेंगे। पब्लिक को भी जानना चाहिए उनका पैसा कहाँ आ रहा है। और आपने कहा कि त्रिपुरा एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक मूवमेंट है। जिस दिन हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, हमको दरकार नहीं है पॉलिटिक्स करने के लिए। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের এমন মন্তব্যই কিন্তু রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা সহমত প্রকাশ করতে পারেননি। তিপ্রামথা যদি রাজনৈতিক দলই না হয়ে থাকে, তবে এই রাজনৈতিক তরজা, রাজনীতির ভোটের ময়দানে দলের অবতীর্ণ হওয়া, সেসব কিসের আন্দোলন? সবশেষেও জনজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করলেন তিপ্রামথা সুপ্রিমো। এমনকি এডিসি ভোট প্রচারে বারবার তিনি মন্ত্রী হতে চান না, তিনি এমপি হতে চান না বলে ভাষণ বক্তৃতা দিয়েছেন। এদিন এনডিটিভির নর্থ ইস্ট ব্যুরো চিফ রত্নদীপ চৌধুরীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও একই মন্তব্য পেশ করেছেন। সেসব বলাবলির পরও কিন্তু তিনি এখন এডিসির সিএম হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রস্তুতি চূড়ান্ত, একেবারে মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য, যা নাকি রাজ্যের একজন মন্ত্রীর সমকক্ষ তো বটেই, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর আংশিক সমতুল্য। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।